Now, today we will discuss resolution of a vector into three rectangular components in space. So, space means there are three axes x, y and z axis. So, resolve a vector into three rectangular components x, y, z in space. So, this is a space. These are the three axes x, y and z axis. This is not a plane. This is a space. So, this is a vector A lie in a space, that is lie in a x-axis, y-axis and z-axis. So this vector A lie along the x, y and z-axis in a space. So let's suppose this vector A makes an angle alpha with x-axis. So this vector A makes an angle alpha with x-axis, beta with y-axis and gamma with z-axis. So ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए. This is a vector A lie in a space, that is lie in a x, y and z space, and this vector A makes an angle alpha with x-axis, beta with y-axis, gamma with z-axis. ठीक है स्टूडेंट, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. सो ax I cap is a vector along x-axis. Ax is the magnitude and I cap is the direction that indicates it is along x-axis. So this vector A resolve into three component vectors ax along ay, y-axis along z-axis az. So this is the resolution of a vector A in three axes, x-axis along, y-axis along and along z-axis. So vector A is resolved into component along x-axis is equal to magnitude उसका ax है और डायरेक्शन क्या स्टूडेंट एक्स एक्सिस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आई कैप यूनिट वेक्टर. सो ए वाई जे कैप इज अ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड सिमिलरली ए जेड के कैप इज अ वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. ए एक्स ए वाई ए जेड आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए component vectors and this ax I cap represent the vector along x-axis. This is the magnitude of a vector and this shows it is along x-axis. So this is a space. So let us resolve a vector A into three components along x-axis, y-axis and z-axis in three dimensions, that is in a space. Let alpha, beta, gamma are the angles between the vector A with x-axis, y-axis and z-axis respectively. Then ax is equal to a cos alpha. स्टूडेंट हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए वेक्टर A. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंगल अल्फा and this vector A resolve into two component vectors along x-axis. Ax is equal to a cos alpha and that is along y-axis ay is equal to a sin alpha. So जो component स्टूडेंट आपका एंगल के साथ वाला होता है वो क्या होता है cos and perpendicular to cos is sin. So ax is equal to यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट a cos alpha. सिमिलरली स्टूडेंट ए वाई क्या आ जाएगा आपका ए कॉस बीटा, बिकॉज दिस इज ए एंगल बीटा मेड विद वेक्टर ए. दिस इज ए वेक्टर ए एंड दिस इज एंगल बीटा. स्टूडेंट मैं भी आपको समझाया एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है कॉस. दिस इज फॉर एग्जांपल अल्फा, दिस इज ए वेक्टर and resolve into two components and along
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा स्टूडेंट, वो वाला कौन सा होगा, कॉज। कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉज वाला। तो अब यहाँ पे एंगल के साथ वाला कंपोनेंट ये आपका ए वाई क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ए कॉज बीटा। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स मेड विद वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट। So similarly, AY is equal to A cos beta and AZ is equal to A cos gamma, because gamma, this is the angle gamma made with vector A and Z axis. So axis के साथ वाला जो component होगा स्टूडेंट, एंगल के साथ वाला, वो वाला कौन सा component होगा आपका, cos. This is A cos alpha. For example, this is a vector A and this is perpendicular to cos is sin. So this is a sin alpha. ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपका एंगल ये वाला होगा स्टूडेंट, और दिस इज अ वेक्टर ए फॉर एग्जांपल, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट मैंने अभी क्या कहा स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, कॉस। दिस इज ए कॉस बीटा, और कॉस के परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन। दिस इज ए साइन बीटा। सो ये आपका ए वाई इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, ए कॉस बीटा। सिमिलरली vector A, this is the z axis, this is angle gamma, and एंगल के साथ वाला कंपोनेंट स्टूडेंट कौन सा होगा, A cos gamma। ठीक है स्टूडेंट। सो वेक्टर A resolve into two components, ax, ay and az। ax equal to a cos alpha, ay is equal to a cos beta, az is equal to a cos गामा। ठीक है स्टूडेंट। नाउ कॉज अल्फा क्या आ गया स्टूडेंट आपका, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज अल्फा। तो कॉज अल्फा क्या आ गया स्टूडेंट, ए एक्स इज इक्वल टू ए, और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड। तो ए वेक्टर मॉड मीन्स सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो कॉज अल्फा आ गया स्टूडेंट। सिमिलरली आपका ये कॉज बीटा आ जाएगा यहाँ से, ए वाई ओवर ए, एंड देन कॉज गामा, ए जेड ओवर ए मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट। सो इन जनरल अब हमने क्या किया स्टूडेंट, वेक्टर ए को कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस ए वाई जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस ए जेड के कैप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड है 5 मीटर आई कैप किसी वेक्टर का। फॉर एग्जांपल अलोंग वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड है 7 मीटर जे कैप। अलोंग जेड एक्सिस फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है आपकी 12 मीटर के कैप। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर व्हेन वेक्टर ए इज रिजॉल्व इनटू three components ax, ay and az along x-axis, y-axis and z-axis. So this is the definition of resolution of a vector A. A is resolved into three components ax, ay, az along x-axis, along y-axis and along z-axis. So ax I cap is component along x-axis, ay j cap is component along y-axis, az k cap component along z-axis. So we resolve vector A into three components ax, ay, az along x, y and z-axis. So this is the definition of a resolution of a vector into three rectangular components. So magnitude of vector A। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको ये डेरिवेशन करके बता देता हूँ। स्टूडेंट हम ये पढ़ चुके हैं, अगर दो वेक्टर्स आपके फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा होंगे, तो स्टूडेंट रिजल्टेंट का फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस 90 क्या होता है स्टूडेंट, 0। तो आर क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। और ये मैं आपको एक बार और प्रूव भी कर चुका हूँ। अगर हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए that is resolved into two components along x axis ax, along y axis
ए वाई, तो देन ए क्या था स्टूडेंट आपका, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ए क्या आ गया आपका, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर का स्केयर रूट। ठीक है स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सो अब हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है और कितने कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट, 3 कंपोनेंट्स, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। स्टूडेंट पहले हम इन दोनों को लेंगे, ए एक्स एंड ए वाई को। इसका रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया R1, तो R1 क्या आ गया स्टूडेंट आपका, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर का स्केयर रूट, और R1 स्केयर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जो एक्स और वाई प्लेन है, जो एक्स और वाई प्लेन है वो जेड एक्सिस के क्या होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर, मीन जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई प्लेन। इट मीन्स जो ये रिजल्टेंट आया R1 वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए जेड। ठीक है स्टूडेंट, इट मीन्स R1 एंड ए जेड, जो थर्ड वेक्टर था आपका अलॉन्ग जेड एक्सिस, R1 एंड ए जेड, वो क्या स्टूडेंट आपके परपेंडिकुलर। और फॉर एग्जांपल हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ गया ए क्या आएगा स्टूडेंट, अब R1 स्केयर प्लस ए जेड स्केयर का अंडर रूट, बिकॉज R1 जो रिजल्टेंट आया था, रिजल्टेंट किसका आया था स्टूडेंट, ए एक्स एंड ए वाई का, और जेड एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई प्लेन, सो इट मीन्स दिस R1 इज परपेंडिकुलर टू ए जेड। अगेन अब हम रिजल्टेंट किसका निकालेंगे, R1 एंड ए जेड का। तो ये आपका क्या फार्मूला है, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 स्केयर प्लस ए जेड स्केयर। तो R1 स्केयर की वैल्यू क्या स्टूडेंट आपकी, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर, और ये आपका ए जेड स्केयर है स्टूडेंट, ये यहाँ पे आ गया ए जेड स्केयर स्केयर रूट। तो ये क्या आ गया आपका फाइनल रिजल्टेंट, ये क्या आ गया आपका फाइनल रिजल्टेंट। सो अगर आपका वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, देन स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड स्केयर का स्केयर रूट। ठीक है स्टूडेंट, सो फॉर एग्जांपल हमारा पोजीशन वेक्टर आर है, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज फॉर एग्जांपल एक्स वाई एंड जेड प्लेन। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट आपका, आर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का स्केयर रूट। ठीक है स्टूडेंट, एंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। स्टूडेंट ये क्या होगा, ये 1 होगा। कैसे होगा 1, ये मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूं स्टूडेंट। ये क्या आया था स्टूडेंट आपका, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड स्केयर, इसको स्केयरिंग कर दो, ए स्केयर आ गया। ए एक्स की क्या वैल्यू थी स्टूडेंट, ए कॉज अल्फा, ए वाई की क्या वैल्यू थी स्टूडेंट, ए कॉज बीटा होल स्केयर, ए जेड की क्या वैल्यू थी, ए कॉज गामा। तो यहाँ से स्टूडेंट आप ए स्केयर कॉमन निकाल लो, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये ए स्केयर क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसल। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, स्टूडेंट क्या आ गया आपका 1। ठीक है स्टूडेंट, सो ये हमने प्रूव कर दिया, ये वाला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर ए। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर ए। एंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव हो गई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
and vector A resolve into three components ax I cap plus ay j cap plus az k cap, तो उसका रिजल्टेंट क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आर्टिकल ओवर हो गया है। नाउ डिफरेंट वेक्टर्स एडिशन इन ए प्लेन। कंसिडर टू वेक्टर्स a and b in xy plane with their components ax ay and vector b के components bx and by। सो वेक्टर a के components हैं स्टूडेंट आपके ax ay एंड वेक्टर b के आपके components हैं bx and by। सो देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b, इनको रिजॉल्व कीजिए इन ए प्लेन। ax एंड ay आर द कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड दिस इज द वेक्टर b। वेक्टर b रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग x एंड y एक्सिस bx एंड by। ठीक है स्टूडेंट, सो दीज टू वेक्टर्स a एंड b लाई इन द xy प्लेन विद देयर कंपोनेंट्स ax ay, ये a के कंपोनेंट्स हैं, bx by ये b वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंट वेक्टर्स a एंड b। सो ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। ए एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका वेक्टर ए है तो वेक्टर ए इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सिमिलरली वेक्टर बी इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स along x axis its magnitude is bx and along x axis means I cap magnitude by and along y axis j cap। So these are two vectors a and b. So we resolve these two vectors a and b into their components along x and y axis. So let r be the sum of these two vectors a and b. So r is equal to vector a plus vector b। ठीक है स्टूडेंट, so r is the resultant of these two vectors a and b। So vector a is ax I cap plus ay j cap and vector b is bx I cap plus by j cap। So write these vectors a and b here। ठीक है स्टूडेंट, since vectors obey the commutative and associative laws, so स्टूडेंट क्या करो, सेम डायरेक्शंस के वेक्टर्स को अलग से लिख लो। दिस इज ए आई कैप एंड दिस इज ए एक्स प्लस बी एक्स। आई कैप यहां से क्या कर लो स्टूडेंट, कॉमन निकाल लो। मीन्स जो आपके सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं पहले उनको लिख लो। सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स कौन कौन से स्टूडेंट, ए एक्स एंड बी एक्स। बोथ दीज वेक्टर्स आर along x axis ax and bx। so write here first sum ax plus bx I cap and then along y axis component है आपका ay and by। so this is a j cap, ये आप अलग से लिख लो स्टूडेंट j cap and write ay plus by। so add their components according to their directions। ठीक है स्टूडेंट, along x axis वाले वेक्टर्स लिख लो ax प्लस बी एक्स, फिर along y axis वाले वेक्टर्स लिख लो ay प्लस by। ठीक है स्टूडेंट, उनके मैग्नीट्यूड्स। सो ये क्या आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। सो हाउ टू ऐड दीज वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस। सिमिलर डायरेक्शंस के वेक्टर्स को पहले लिख लो स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी एक्स। ये आपके वेक्टर्स दोनों ए और बी के जो कंपोनेंट्स थे, वेक्टर ए और बी के जो कंपोनेंट्स थे अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी एक्स। फिर ए वाई एंड बी वाई जो कंपोनेंट्स थे वेक्टर ए एंड बी के अलोंग वाई एक्सिस, वो लिख लो स्टूडेंट ए वाई प्लस बी वाई। सो इसको स्टूडेंट आप मान लो ए एक्स प्लस बी एक्स को आर एक्स, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ए वाई प्लस बी वाई को स्टूडेंट आप मान लो आर वाई। ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस इज आई कैप, दिस इज ए जे कैप। सो दिस ए एक्स प्लस बी एक्स के मैग्नीट्यूड को हमने क्या सपोज कर लिया स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आ गया आर एक्स, और इस ए वाई प्लस बी वाई का
जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट उसका आंसर क्या आ गया आर वाई. सो री राइट हियर वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे कैप. ठीक है स्टूडेंट. एंड आर एक्स क्या है आपका स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई क्या है स्टूडेंट आपका ए वाई प्लस बी वाई. ठीक है स्टूडेंट. सो दस ईच कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या आया इज द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी. तो ये क्या स्टूडेंट आपका ए एक्स प्लस बी एक्स कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई प्लस बी वाई क्या है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स अलोंग वाई एक्सिस. So resultant vector R क्या is the sum of the corresponding components of vectors A and B. ठीक है स्टूडेंट. ऐड करना आ गया आपको. मैं आपको एग्जांपल एक समझा देता हूं. फॉर एग्जांपल हमारा एक वेक्टर है A, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 5i प्लस 6j कैप. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूनिट्स आ गए आपके फॉर एग्जांपल मीटर. दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर फॉर एग्जांपल 7i कैप प्लस 8j कैप. यूनिट्स क्या आ गए स्टूडेंट मीटर. हमने क्या निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. और मैंने अभी क्या कहा स्टूडेंट कैसे ऐड करना है अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस. ये डायरेक्शन आपकी क्या है एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. यहाँ पे क्या डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस पे ये आपका 7 एंड 5. सो 5 प्लस 7 दीज आर द मैग्नीट्यूड्स अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप. एंड 6 एंड 8 क्या स्टूडेंट आपके मैग्नीट्यूड्स अलोंग वाई एक्सिस 6 प्लस 8 जे कैप. तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका रिजल्टेंट वेक्टर. क्या आ गया रिजल्टेंट वेक्टर 7 प्लस 5 12i कैप एंड 8 प्लस 6 14j कैप. तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया. ठीक है स्टूडेंट इन मीटर्स. और अगर हमने मैग्नीट्यूड भी निकालने हैं स्टूडेंट तो ये आपका आ गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. और हमारा जो रिजल्टेंट था स्टूडेंट वो क्या था फार्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो ए एक्स आपका आया स्टूडेंट 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर. और जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी. ठीक है स्टूडेंट. एडिशन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है स्टूडेंट. दिस इज अ वेक्टर आर 12i प्लस 14j. ठीक है स्टूडेंट. एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर स्क्वायर रूट. ठीक है स्टूडेंट. आपको मैंने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया है. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज डिफरेंट वेक्टर्स एडिशन इन ए स्पेस. स्पेस मीन्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. सो सेम फॉर एग्जाम्पल टू वेक्टर्स ए एंड बी इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. And ax, ay, az, these are the components of vector A. Bx, by, bz are components of vector B along x, y and z axis respectively. ठीक है स्टूडेंट. सो वेक्टर A, how can we write vector A? axi plus ayj plus azk. ठीक है स्टूडेंट. We resolve vector A into three components along x axis ax, along y axis ay, along z axis az. ठीक है स्टूडेंट. And next similarly vector B resolve into three components bx I cap plus by j cap plus bz k cap. ठीक है स्टूडेंट. So R is the sum of vectors A and B. R is equal to A plus B. So R क्या आ गया स्टूडेंट आपका ax I cap plus ay j cap plus az k cap. ये आपका वेक्टर A आ गया स्टूडेंट आपका. और वेक्टर B क्या आ गया स्टूडेंट आपका bx I cap plus bz k cap बी वाई की सॉरी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. और मैंने अभी आपको कहा स्टूडेंट कैसे ऐड करना है अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस. अलोंग एक्स एक्सिस पे कौन कौन से वेक्टर्स हैं ए एक्स प्लस बी एक्स. दीज टू कंपोनेंट्स आर अलोंग एक्स एक्सिस. इनको ऐड कर लो. फिर अलोंग वाई एक्सिस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप. और रेस्ट आपका क्या बचा थर्ड वेक्टर
along z axis components ऐड कर लो az प्लस bz. सो हाउ टू ऐड वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन. सिमिलर डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं स्टूडेंट, वो हमने ऐड करने हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो ये आपका r वेक्टर आ गया, ax प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप. ठीक है स्टूडेंट. एंड फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी एक्स को क्या लिख लो स्टूडेंट आप, आर एक्स. ए वाई प्लस बी वाई को क्या लिख लो स्टूडेंट आप, आर वाई. ए जेड प्लस बी जेड को क्या लिख लो स्टूडेंट आपका, आर जेड. तो ये आपका आर वेक्टर आ गया. ठीक है स्टूडेंट. अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट. सो क्या आ गया, डेफिनेशन क्या आ गई, ईच कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ vector a and b. These are the components of vector a and b. These are the components of vector a and b and add according to their direction, similar directions. ठीक है स्टूडेंट. मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका वेक्टर कोई a है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. बी वेक्टर है स्टूडेंट आपका फॉर एग्जांपल 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. एंड स्टूडेंट a प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, हमने कैसे ऐड करना है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस. सो एक्स एक्स की तरफ कौन सा वेक्टर है, 2i कैप. इधर एक्स एक्स की तरफ कौन सा वेक्टर है, 3i कैप. सो 2 प्लस 3, because these two vectors, those component vectors are along x axis, and 3 plus 2, ये वाला 3 स्टूडेंट और ये वाला 2, 3 plus 2, these components along y axis, and 4 plus 3, these components along z axis. सो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया स्टूडेंट, 2 plus 3 5i कैप, 3 plus 2 5j कैप एंड 4 plus 3 7k कैप. ये आपका आ गया स्टूडेंट ax आई कैप, ay j कैप, az k कैप. हम अभी रिजल्टेंट का फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं. इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. ये हम अभी पढ़ चुके हैं. रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स इन ए स्पेस. ठीक है स्टूडेंट. ये हम अभी पढ़ चुके हैं. तो ए एक्स की तरफ के मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट, 5. ये आपका ए एक्स है, ये आपका ए वाई है और ये आपका ए जेड है. 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. सो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड. ये क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. किसका, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का. ये वेक्टर आया स्टूडेंट 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप. और इस वेक्टर का ये क्या आया स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट. ठीक है स्टूडेंट. निकालना आ गया. ये न्यूमेरिकल भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, हाउ टू ऐड वेक्टर्स इन ए स्पेस. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट, डिफरेंट वेक्टर्स, addition and subtraction in a space. अब addition and subtraction both combined. For example, vector A, their components is ax plus ay plus az along x, y and z axis. Similarly, vector B have components bx, by and bz, and similarly vector C has components cx, cy and cz. हमने for example vector T निकालना है. रिजल्टेंट वेक्टर क्या स्टूडेंट, a प्लस बी माइनस सी. ए प्लस बी माइनस सी. सिंपली आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसको ऐड कर देना ए एक्स प्लस बी एक्स और सी एक्स को क्या कर देना स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट. ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी करने हैं अकॉर्डिंग टू क्या करनी है स्टूडेंट, डायरेक्शंस. क्या करनी है, डायरेक्शन. सिमिलर डायरेक्शंस के जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर जो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो अप्लाई कर देना. यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी माइनस सी. सो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स आई कैप. ठीक है स्टूडेंट. सिमिलरली जेड एक्स की तरफ क्या है स्टूडेंट, ये वाला ए वाई बी वाई सी वाई.
तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो, क्या ऑपरेशन है, ए प्लस बी माइनस सी, ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस जे कैप, एंड थर्ड क्या है आपका स्टूडेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या है, ए एक्स बी, ए जेड बी जेड सी जेड। तो ये ऑपरेशन लगा दो, ए प्लस बी माइनस सी क्या आ जाएगा, ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। जो भी आपको एग्जाम में बोलेगा स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि ए प्लस बी माइनस सी आना है, वो ए माइनस बी प्लस सी भी पूछ सकता है, वो ए माइनस बी माइनस सी भी पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, जो आएगा उस आपने सिंपली यहाँ पे ऑपरेशन लगा देने हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस माइनस चेंज कर देने हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये आपका कंबाइंड टी वेक्टर आ गया अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, सो टी क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली ए टी वाई क्या आ जाएगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।